So today, Pahujala Academy has this opportunity, a very special opportunity to invite Tazeen. She has not only cleared West Bengal judiciary, but she has secured rank 2. It's not a big thing for PLA. It's a huge thing for us. We're really proud of you, Tazeen, for this wonderful achievement that you have secured so far. So today in this interview, I would like to begin with the starting of how it all started. Okay. So let's talk about, first of all, obviously, we need to welcome you with our warm hearts. You have been a brilliant, a fantastic student of Pahujala Academy. All right. So let's begin with one question. The first question that I'm throwing your way, and that is, what made you think that you want to become a judge? Okay. Why you wanted to become a judge, and what, motivated you to become a judge? So let's start there. Thank you. Thank you so much for having me. And it's glad to be here. So the answer is it was not my dream, as everybody has. जज बनना एज सच मेरा कोई सपना नहीं था. आई थिंक इट्स माई डेस्टिनी. इनफैक्ट लॉ भी मेरी डेस्टिनी थी. मुझे एज सच कभी लॉ करना नहीं था. बट आफ्टर 12th आई वॉज वेरी कंफ्यूज. सो माई मदर बेसिकली इंकरेज मी. उन्होंने कहा कि लॉ करो. और इस टाइम पे मैं खुद भी इतनी श्योर नहीं थी, तो मैं लॉ में आई. But eventually I enjoyed the subject, and it was my mother only who wanted me to become a judge. तो उन्हीं के encouragement और support से I think मैं यहाँ पर हूँ. And as far as myself, so yeah, I enjoyed the subject while studying in college. And during internships only, I realized that corporate and other things are not the cup of my tea. And I observed one judge, one lady judge, and the conduct she was having really influenced me. So I think that was my call, and where I realized that okay, I want to do this job. And that's how it started, and here I am. Great. Wow. Okay. So, first of all, I would like to know when you joined the foundation batch of Pahujala Academy. Which year you joined? 2021, the year I graduated. Okay, so you joined in your after completing your law, right? Yes. So did you join the online batch or did you join the offline batch? Offline. I was in offline. It was my batch was hybrid. So All whenever I right. was not to join coaching offline, I used to do it online. So it was hybrid mode. Okay, so you have been, given both the options. All right. So you have joined. So how you came to know about Pahujala Academy? My friend, there was one of my friend who saw the demo of Anurag sir, so he suggested me. All right. Okay. So, so basically, let's start with the journey. Obviously, the budding aspirants who will be, waiting impatiently to know how you prepared for your preliminary examination. Then we'll move on to the mains and then the interview. So let's, talk about your preparation strategy. Okay, so starting from prelims, मैं बताना चाहूंगी कि मेरे स्टार्टिंग के काफी सारे prelims नहीं निकले थे. मैंने ऑलमोस्ट 4 to 5 प्रीलिम्स दिए थे और मेरे एक भी नहीं निकल रहे थे. और काफी कट ऑफ से दूर मार्क्स थे. ऐसा भी नहीं था कि मेरी कट ऑफ के पास थे. तो मेरा मोराल जो था वो एकदम जीरो था, इनफैक्ट नेगेटिव में था. बट मैं अनुराग सर का बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि वो ही थे जिन्होंने मुझे इनकरेज किया और कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तजीन, हो जाएगा तुमसे. बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू बी लाइक मुझसे नहीं होगा. बट हैविंग अ टीचर लाइक हिम, मेंटोर like him, in fact I to consider him my guru. तो अगर ऐसे आपके टीचर हैं जो आपको इतना सपोर्ट करेंगे, तो मतलब आई थिंक यू कैन अचीव एनीथिंग. तो वही थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं तजीन, हो जाएगा, जस्ट डोंट गिव अप, मतलब देती रहो एग्जाम्स. तो उनकी इतनी होप देख के ना मुझे मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया कि जब टीचर इतनी होप दे रहा है तो आई शुड ऑल्सो ट्राई. और वेस्ट बंगाल वॉज द फर्स्ट प्रीलिम्स विच आई क्रैक्ड, एंड इट वॉज माई फर्स्ट मेन्स एंड इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू. सो उनका जो कॉन्फिडेंस अनुराग सर का दिया हुआ था, उसी की वजह से यहाँ हूँ. तो आई थिंक हाँ, कमिंग बैक टू द प्रीलिम स्ट्रैटेजी, इट्स प्रीटी बेसिक. आई थिंक बेयरैक्स, अपार्ट फ्रॉम डीजेस अगर मैं कहूँ, तो बेयरैक्स ही आपके लिए इनफ होते हैं. बट बेयरैक्स बहुत थरली होने चाहिए. मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 बार आपके बेयरैक्स कंप्लीट होने चाहिए, बिल्कुल लाइन बाय लाइन. कोई सेक्शन स्किप नहीं करना है. ऐसे नहीं कि ये आता है ये नहीं आता, वो नहीं चलेगा.
आपको सारे सेक्शंस पता होने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है। डीजीएस को ऑब्वियसली थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है, क्योंकि मैंने एज सच वेस्ट बंगाल के लिए स्पेसिफिक कभी ऐसे टारगेट नहीं किया था। मुझे जज बनना था तो मैं सारे एग्जाम्स दे रही थी, तो डीजीएस की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। बट अगर हम वेस्ट बंगाल और बाकी स्टेट्स की बात करें तो BRACs आर इनफ फॉर प्रीलिम्स। और हाँ, एक आप चीज मतलब जरूर करिए प्रीलिम्स में, MCQ सॉल्विंग। आई थिंक वो मेरा कहीं ना कहीं लैकिंग था, मैं नहीं करती थी, इसलिए मेरे प्रीलिम्स नहीं हो पाते थे। फिर अनुराग सर ने मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने मुझसे काफी डांटा कि MCQ लगाने हैं, तो MCQ तो जरूर लगाने चाहिए आपको, ऑलमोस्ट जितने हो सके। प्रीलिम्स के लिए आई थिंक इतना काफी होता है। और हाँ, मेन जो आपका आता है वो है मेंस, क्योंकि एक्चुअल में वही आपका सिलेक्शन कराता है। एंड आई थिंक ज्यादा लोग को नहीं पता है, बट मेंस में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, इवन मोर देन द टॉपर। तो आई थिंक या मेरे और टॉपर में से 1.5 मार्क्स का डिफरेंस था, और वो भी इंटरव्यू की वजह से, वरना मेरे हाईएस्ट स्कोर था। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग कभी भी प्रीलिम्स की तैयारी एज सच मत करिए, आप हमेशा मेंस की तैयारी लेके चलिए। जैसे जनरली एस्पिरेंट्स क्या करते हैं ना, प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद मेंस देखेंगे, नहीं, बिल्कुल नो, अ बिग नो। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपके पास अगर डीजीएस आप देखेंगे तो हार्डली 1.5 मंथ भी नहीं देता वो, तो इतने में आपका मेंस नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स तो आपको सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो आपका हो गया, उसके बाद क्या, मतलब यू आर अगेन एक तरीके से जीरो हो जाएंगे, क्योंकि उसके मार्क्स जुड़ते ही नहीं है। तो आपको मेंस हमेशा तैयारी करके चलिए आप, और अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो इवेंचुअली आपका प्रीलिम्स भी प्रिपेयर हो जाता है। और 1 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन अगर आ गया है, तो 1 महीने पहले प्रीलिम्स के लिए आप मतलब स्पेसिफिक बैराक करना स्टार्ट कर दीजिए। आप फिर मेंस का थोड़ा सा साइड रख सकते हैं 1 महीने पहले, आई थिंक दैट विल बी इनफ। बट हमेशा से आपको मेंस का ही टारगेट करना चाहिए। उसके लिए आप बुक्स पढ़िए जो आपकी बेसिकली कंसेप्चुअल बुक्स हैं। मैंने परीक्षा मंथन फॉलो की थी, मुझे वो काफी अच्छी लगी थी। तो बट उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आप पूरी पूरी जो सब्जेक्ट्स बुक्स हैं वो कंप्लीट करिए। लोग एकदम से गाइड में चले जाते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल नहीं होती, आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। गाइड तो सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। तो आप पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करिए, 1-2 बार मेन सब्जेक्ट्स जो है, सीके तकवानी CPC की है, आपकी क्या कहते हैं आर्बिट्रेशन की अलग बुक्स होती है, IPC की पिल्लई बुक है, CRPC की कैलकर बुक है, तो ये सारी बुक्स पहले कंप्लीट करिए 1-2 बार। उसके बाद आप कोई गाइड जंप कर सकते हैं रिवीजन के लिए। तो ये मेंस का है। आंसर राइटिंग करिए। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन करिए। मतलब किसी की रेस में नहीं भागना है कि जिसने जो कह दिया बस उसी में भाग रहे हैं। किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे मतलब जनरली आप देखेंगे टॉपर्स को कहते हुए कि आंसर राइटिंग बहुत करिए। मैंने आंसर राइटिंग फॉलो नहीं की थी उतनी, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी है और मुझे आंसर आर्टिकुलेशन में उतना प्रॉब्लम नहीं था कभी। तो मैंने फोकस किया इनहैंसिंग माई आंसर्स पे, क्योंकि वो मेरा लैकिंग था। तो आप देखिए कि आपका क्या लैकिंग है। अगर किसी की राइटिंग स्पीड कम है तो वो राइटिंग स्पीड पे काम करे। अगर किसी की आर्टिकुलेशन ऑफ आंसर्स अच्छा नहीं है वो उस पर काम करे। अगर किसी को अपना कंटेंट इनहांस करना है वो उस पर काम करे। तो स्टडी योर सेल्फ, इवेल्युएट योर सेल्फ, उसके बाद आप अपनी कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको फॉलो करिए। जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया उसको ब्लाइंडली फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैंने नहीं किया था। तो ये मेंस का हो गया। और इंटरव्यू में आप मॉक्स इंटरव्यू दीजिए, उससे आपको काफी पता चलता है कि कैसे आप मतलब आंसर्स दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग अकेले में तो बहुत अच्छे से आंसर्स दे पाते हैं, बट आप जब बोर्ड के सामने पैनल के सामने बैठेंगे तो वो एक अलग प्रेशर होता है। तो आप इंटरव्यू के लिए जितना चाहे मॉक दे सकते हैं, इट इट दे आर हेल्पफुल। और बेसिकली इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो उसमें अगर आपको नहीं आता है कोई चीजें, बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, तो मतलब वन शुड नॉट बॉदर अबाउट इट। क्योंकि मेरा भी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो नहीं आता था मुझे, बट दैट डजंट मैटर टू देम। तो पर्सनालिटी पे अपना ध्यान दीजिए, और वो तभी होगा जब आप मॉक इंटरव्यूज करेंगे। तो ये तीनों की स्ट्रैटेजी है। एंड आई वुड अगेन वांट टू से दैट प्लीज प्रिपेयर फॉर द मेंस फर्स्ट। मेंस के लिए करते रहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक सब हो जाता है। All right. So my next question is that since you have secured the highest rank in your mains examination, you're the apt person to tell every one of us how did you frame your answers for mains? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा जो 11th 12th का बैकग्राउंड आर्ट्स का था उसने भी काफी हेल्प किया है मुझे, क्योंकि वहीं से मेरी आंसर आर्टिकुलेशन की स्किल आई है। और मैं एमयू की हूँ, तो वहां पे भी इस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स होते थे कि मैं कहूंगी कॉलेज का भी मेरा हाथ रहा है इसमें। बट हाँ, मैं ड्यूरिंग द जर्नी अगर बोलूँ तो
मैंने अपनी इनहांसिंग कंटेंट पे ज्यादा मतलब वर्क किया था, क्योंकि बाकी चीजें मेरी प्रॉब्लम नहीं थी। तो इनहांस आप कंटेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आया है आपका, तो एकदम से आपको प्रोविजन स्टार्ट नहीं करना चाहिए। रेसिड्यूटी काटा है तो आपने सेक्शन 11 बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैंने ये अप्रोच कभी फॉलो नहीं की। आप पहले कोशिश करिए कि आप उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। आप उसको दूसरे लॉ से लिंक कर सकते हैं, रेसिड्यूटी काटा को डबल जीओपार्डी से लिंक कर सकते हैं। आप नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट ला सकते हैं। आप जो उसकी मैगजीम्स अलग अलग है, इंटरेस्ट रिपब्लिक वाला मैगजीम जो है, तो आप इस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा इंट्रोडक्शन एग्जामिनर के दिमाग में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट होता है आंसर का। प्रोविजन तो सब लिखेंगे, बट आपको अपना आंसर थोड़ा अलग बनाना है उनसे। तो उसमें ये सारी टिप्स होती है। आप इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन बनाइए, उसका मैंने आपको तरीका बताया। लॉज लिंक करिए अलग अलग से, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। मैगजिम आता है तो वो लिखिए। अगर आपको कोई करंट अफेयर उससे जुड़ा हुआ दिख रहा है तो आप वो डाल सकते हैं। कोई रीसेंट केस लॉ है वो डाल सकते हैं। अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हो उसमें। आपको कुछ अलग करना है, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट अगर आपको पता है आप वो डाल सकते हैं। तो ये सब थोड़ी अलग अलग चीजें हैं जो शायद बाकी मतलब जो कैंडिडेट्स है वो ना लिखे, और आप अपने आंसर में लिखेंगे तो एनहांस हो जाएगा। मैंने यही इनकलकेट किया था। मैं इंट्रोडक्शन अपना इंप्रेसिव बनाने की कोशिश करती थी जितना हो सके, तो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट डाल दिया। मैं ज्यादातर कोशिश करती थी कनेक्ट लॉस करने को, और ये भी मुझे अनुराग सर ने बताया। पहले मैं मतलब कनेक्टिंग लॉज में उतना नहीं आती थी। विजय सर का भी मैं थैंक यू कहूंगी इसमें, क्योंकि उन्होंने भी मेंस आंसर राइटिंग में मेरी काफी हेल्प की है। तो कैसे लॉस को दूसरे लॉ से कनेक्ट करना चाहिए, कैसे फ्रेम करना चाहिए, ये मुझे अनुराग सर ने सिखाया था। तो उससे भी आपको काफी मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इन्विजिलेटर को पता चल जाता है, एग्जामिनर जो है, कि आपको बाकी लॉस की भी नॉलेज है, आपको इम्प्रेस करना है उसको। हेडिंग्स बना के लिखिए, और अपना कंक्लूजन, अगर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप अपना कंक्लूजन लिखिए। आपने पूरा लॉ समझा दिया, पूरा लीगल बैकग्राउंड सब समझा दिया, बट आप खुद का भी कंक्लूजन लिखिए। थ्योरी का अलग पैटर्न होता है, एप्लीकेशन बेस्ड का अलग होता है। वेस्ट बंगाल में दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी भी आती है और एप्लीकेशन बेस्ड भी आता है। तो थ्योरी में मैंने बताया इंट्रोडक्शन हो गई, फिर आपका मेन जो कंटेंट हो गया वो, आपने कंक्लूजन लिख दिया जो आपको फील होता है या कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हैं। दैट्स योर स्किल। तो मैंने अपनी स्किल बनाई। अब आपको अगर कुछ और आपके अंदर है, इनकलकेट कर सकते हैं आप, तो आप वो करिए। और एप्लीकेशन बेस पे तो काफी सीधा सा फॉर्मूला होता है। फैक्ट्स लिखिए आप, प्रिंसिपल जो उस पे लग रहे हैं वो लिखिए आप। उसके बाद आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे जो फैक्ट्स पे कैसे अप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स होता है। लास्ट में आप अपना आंसर डिसीजन बताइए कि क्या है। तो ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड का होता है। तो इस तरीके से आपको मेंस में थोड़ी एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी। आपको आधे नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे बाकियों से, और वो आधा आधा नंबर ओवरऑल काफी बन जाता है। Yes. Okay. So, Tazeen, I would like to know how PLA helped you in your preparation for mains answers. मेरे लिए तो पीएलए अनुराग सर ही हैं बेसिकली। उन्होंने ही मुझे जितना हेल्प किया आंसर फ्रेम करने में, क्योंकि मैं उनके पास जाती थी मेंस आंसर चेक करवाने, तो वो मुझे पर्सनली चेक करके बताते थे कि क्या इसमें सही होगा, क्या नहीं सही होगा, और आपको कितने टाइम फ्रेम में कितना वर्ड्स लिखना है। क्योंकि इंसान लिख तो बहुत देता है, आपको आता भी उस टाइम पे बहुत कुछ है, बट एक्चुअल में क्वालिटी आपको लिखनी है उसमें, आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो वो अनुराग सर ने मुझे बताया है, और विजय सर ने भी मुझे बहुत इसमें हेल्प की है कि कैसे आंसर लिखना चाहिए और आप क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उनका भी मतलब काफी हेल्प रही है मेरे लिए। और मतलब जो पर्सनल गाइडेंस जो मैं मेंस के लिए चाहती हूँ, जो बच्चे लैक करते हैं, वो पीएलए के थ्रू मुझे इन टीचर्स के थ्रू मिली, तो दैट आई एम वेरी थैंकफुल। All right. So, obviously, we all would love to know what all questions you encountered in your West Bengal interview. All right. So, tell us. बीइंग अ नॉन बंगाली, तो आपको मतलब ये चीज पता ही होगी अभी कि बंगाली लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। Right. तो इंटरव्यू में आपका सबसे पहला सेगमेंट बंगाली लैंग्वेज का ही होता है। तो और उसमें भी वो न्यूज़पेपर पे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग एंड राइटिंग पे, तो न्यूज़पेपर रीड करवा के देखते हैं और न्यूज़पेपर की डिक्टेशन भी देते हैं, और आपको स्पीकिंग भी बोलते हैं करने को। तो स्पीकिंग तो खैर मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, बट रीडिंग राइटिंग पे कमांड थी मुझे, तो मैंने रीडिंग राइटिंग उनको करके बता दी थी। उसके बाद तो जनरल लॉ के क्वेश्चंस थे, जितने मुझे याद आ रहे हैं। प्ली बार्गेनिंग का एक क्वेश्चन था, बर्डन ऑफ प्रूफ का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मुझसे, पॉक्सो से रिलेटेड पूछा था, और काफी एचआर के क्वेश्चन भी पूछे थे कि आपकी फैमिली में कौन क्या करता है, आपके कितने सिबलिंग्स हैं,
और आप मतलब लॉ में क्यों आई, ये सारे क्वेश्चंस भी काफी थे। सेक्शन 161 सीआरपीसी से भी क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन था, जो चेयरपर्सन थी, चेयरवुमेन थी, तो उसने मुझसे पूछा था। तो ये सारे क्वेश्चन थे। तो अगर कोई नॉर्थ इंडियन है तो उसको बंगाली तो एकदम मस्ट है पढ़ने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि प्रीलिम से ही आप मतलब लग जाइए, क्योंकि हम लोग को तो मेन से इंटरव्यू के बीच में 7-8 मंथ्स का गैप मिल गया था। तो इसलिए हमने मेंस के बाद तैयारी की थी। इनफैक्ट मैंने और रुखसाना जो रैंक 3 है, वी आर रियली गुड फ्रेंड्स, तो हम दोनों ने साथ मिलके ही प्रिपरेशन की थी बंगाली की। तो क्या उस वजह से काफी हद तक मैं कहूंगी एक मतलब इजी पड़ गया था। तो आप मेंस के बाद बिल्कुल स्टार्ट मत करिए, आप प्रीलिम से पहले अगर आपका प्रीलिम से अच्छा स्कोर आ रहा है तो आप प्रीलिम से स्टार्ट करिए। 4 to 5 मंथ्स अगर आप अच्छे से दे रहे हैं तो लैंग्वेज हो जाएगी, इतना प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। Okay. So, since you mentioned this was not your first attempt, you had your own share of failures, right, Azeen? So, we would like to know, out of all the failures, how did you come back with, I would say, rank 2 with a bang? That is the word for you. What motivated you? मैं मतलब बोलना चाहूंगी कि जनरली लोग सिर्फ मतलब तैयारी से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड चीजों को एड्रेस करते हैं, बट देयर आर मेनी थिंग्स, ऑल मतलब बहुत, जो आपके माइंडसेट को अफेक्ट करती हैं। देयर आर मच मोर थिंग्स, लाइक आपके हेल्थ इश्यूज, आपके मेंटल इश्यूज, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि आपको ओवरऑल काफी अफेक्ट करते हैं। तो मैं कहूंगी डोंट लूज योर फोकस, और डिमोटिवेटेड नहीं होना है आपको। कुछ डेज चलते हैं ब्रेक के, कई बार आपका मन करेगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, आप नहीं उठना चाहेंगे बेड से। और मेरे साथ भी हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने भी अपनी फिजिकल हेल्थ इश्यूज, पर्सनल प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज बहुत फेस किया है इस पूरी जर्नी में। तो वो चीज आपको इवेंचुअली अफेक्ट करते हैं। बट हाँ, डोंट लूज फोकस एंड डोंट गेट डिमोटिवेटेड। और ये मैं कहूंगी आप कैसे कर सकते हैं, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल जो आपको इनकरेज करें। जैसे मेरी फ्रेंड रुखसाना, मतलब उसने मुझे बहुत हेल्प किया था इसमें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने में। अनुराग सर ने काफी ज्यादा इंकरेज किया मुझे कि नहीं, हो जाएगा तुमसे। तो मतलब इस तरीके से अगर आपका फोकस लूज नहीं होता है ना, तो फेलियर्स तो मतलब आपको रियलाइज भी नहीं होंगे, आप बस आगे बढ़ते जाएंगे। तो अपना फोकस लूज नहीं करना है, डिसहार्टेंड भी नहीं होना है, ब्रेक लेना इज ओके, बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द जर्नी, ऑलवेज कम बैक and give yourself at least a sincere chance for this exam. एंड प्लीज रिमेंबर कि ये एग्जाम कोई स्केल नहीं है आपकी इंटेलिजेंस जज करने का। अगर आपने इसमें हार्डवर्क किया है तो मे बी आपको यहाँ सक्सेस ना मिले, बट आपको कहीं और बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो आप हार्डवर्क करिए, इसके लिए नहीं कि रिजल्ट मिले, इसके लिए कि जस्ट डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। तो एटलीस्ट एक सिंसियर चांस आपको देना चाहिए। All right. So I know it's a typical question that I'm asking you, but still somehow we would like to know for how long, how many hours you used to study a day? और मैं बताऊंगी ना तो लोगों को यकीन नहीं होगा। एक्चुअली में मैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। मतलब लोग 11-12 घंटे पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं रोज सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ती हूँ। अगर मैं नॉर्मल अपना डेली कोर्स बताऊं तो 4 घंटे से ज्यादा मुझसे हो ही नहीं पाती पढ़ाई। बट अगर मेरा कोई मतलब एग्जाम पास आ रहा है, जैसे कोई मेरा मेंस है, तब मैं 7-8 घंटे ले जाती हूँ। आई थिंक दैट्स मैक्स, उससे ज्यादा मेरी एनर्जी नहीं है, ना मेरी कॉम्पिटेंसी है। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की इन दिस जर्नी। आप 10 घंटे पढ़ रहे हो एक दिन, 2-3 दिन आपका गैप है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप रोज 4 घंटे पढ़ रहे हो, 2-3 घंटा भी पढ़ रहे हो, कभी कभी ऐसा होगा आप सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ पाओगे, लेकिन अगर आप रोज पढ़ोगे ना, यू विल क्रैक इट डेफिनेटली। नो बडी विल स्टॉप यू। Okay. So since you joined PLA in the year 2021, I would like to know what facilities which you have taken from PLA has actually helped you over here. हाइब्रिड मोड का जो सिस्टम था ना पीएलए का, वो मुझे काफी हेल्प किया। कि मतलब कई बार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी भी मतलब कुछ इश्यू हो रहा है, तो मैं ऑनलाइन भी ले सकती हूँ और ऑफलाइन भी ले सकती हूँ, वो चीज एक हुई। और जो पर्सनल इंटरेक्शन टीचर्स के साथ अलाउ होता है, वो उसके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि तभी अनुराग सर, विजय सर से मैंने इंटरेक्ट कर पाई। तो वो एक जो सेगमेंट पीएलए प्रोवाइड करता है, दैट ऑल्सो हेल्प मी अलॉट। All right. Okay. So this is not the end, right? What are your thoughts about the future? What is there any other? I know you people never, lay down, lay back. You have something or the other in your, eye. So tell me, what are your future, uh, aspirations now?
है तो मतलब आई एम अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, तो अभी एग्जाम निकल गया तो आई एम लाइक कि ओके देयर इज मोर टू गो। तो अभी मतलब ये एग्जाम निकला है तो फ्यूचर में कुछ और मुझे लगेगा तो मैं उसके लिए भी ध्यान दूंगी। अभी राइट नाउ तो आई हैव नॉट डिसाइडेड, बट हाँ मतलब आई हैव दिस वन प्रिंसिपल, नेवर सेटल, बिकॉज दैट स्टॉप्स योर ग्रोथ। अगर आप एक जगह सेटल हो गए, आपने एक जगह वो आराम वाली जिंदगी अपना ली, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड आई एम अ वेरी, कह सकते हैं, लालची पर्सन इन दैट। तो मतलब आई वोंट सेटल। अभी तो आई एम enjoying this success, but I know that definitely I'm gonna do something in future, maybe HJS or something. Okay, so this is something not related to your studies, don't worry. After you received a result, what was the best thing that happened to you? Obviously, you became judge. Okay, something which actually happened with you that made you feel, you know, that you have made something. Maybe your parents was. I mean, obviously they'll be proud. So, what happiest thing after the result? मैं एक बहुत स्मॉल टाउन से आती हूँ, मतलब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक टाउन है मौदाहा। तो वहां पे ना लड़कियों को बहुत ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। तो मतलब मेरी, आई एम लकी कि इमीडिएट फैमिली मेरी पढ़ी लिखी है। तो मेरी मदर ने बहुत फाइट बैक किया है मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि मतलब इतना ज्यादा सब लोग इन नहीं थे कि बेटी है बड़ी होके शादी हो जाएगी, यही वाली जो सोच रहती है सबकी। तो मैं जब जज बनी तो उन लड़कियों को जो इंस्पिरेशन मिली है, दे आर लाइक कि यस नाउ वी वांट टू स्टडी। और उनके पेरेंट्स की जो सोच बदली है कि नहीं, हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे Judge और कराए. हम भी अपनी बेटी को कुछ बड़ा करके मतलब दिखाएंगे। और वो जो यकीन उनका हुआ है कि नहीं, बेटियां भी कुछ कर सकती हैं, सिर्फ लड़कों की अब बात नहीं रही है। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग, कि आई एम बिकमिंग द इंस्पिरेशन ऑफ पीपल। और जब मैं गई अपने होम टाउन तो काफी सारी मतलब लड़कियां थी, ऐसे बच्चियां थी जो मुझसे मिलके बोल रही थी कि हमें आपकी तरह बनना है। I think that was the moment. I think it's safer to say now it's not you who has become the judge, it's your mother who has, won this battle. So, Exactly. really, I mean, I literally had goosebumps hearing this story. Okay, Tazeen, so we are almost at the end. Is there something that you need to add up? Just, something that out of the whole judiciary preparation Germany, how can you sum up which can be very crucial to the judiciary aspirants? मैंने जो चीज बोली कि आपके लिए सिर्फ मतलब पढ़ाई से अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, जो कि मतलब माइंड को बहुत अफेक्ट करते हैं और इवेंचुअली आपकी प्रिपरेशन को भी अफेक्ट करेंगे। तो मतलब उस टाइम पे ब्रेक लेना इज ओके। ऐसा नहीं, आप प्लीज अपने आप को मतलब डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आई ट्राइड दैट। मैं, अगर मेरा माइंडसेट नहीं भी सही होता था तो भी मैं कोशिश करती थी पढ़ने की। इट्स ऑफ नो यूज, ना आपकी पढ़ाई हो पाएगी ना आप आराम कर पाएंगे। तो इट्स ओके टू टेक ब्रेक्स, but just don't lose your focus, don't be disheartened, and give yourself a sincere chance. Or there's a saying in Bhagavad Gita and also in Islam that कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये आप अपना माइंडसेट अगर रखेंगे ना तो आपको कभी भी मेंटल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि मतलब मैंने क्या किया और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यू जस्ट मतलब फोकस and do your hard work, and maybe you won't get result here, but you will get result somewhere like far better. So just don't lose your morale down, or just don't lose your focus, and be focused। कुछ भी हो, ब्रेक्स ले लो, सब कर लो, but please हार नहीं मानना है। just don't give up, because you will be the inspiration for many more, so just be focused। All right. Thank you so much, Tazeen, for the time and for all the hardship that you have done throughout your preparation. So, I mean, PLA would like to thank you for the result. I mean, you were not the among those students who did not take things seriously. So, thank you so much for this wonderful gift to Paula Law Academy as well, Tazeen. Okay. Thank you Thank you so so much. much। Thank Thank you। you.